سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ فتنہ الخوارش کے 3 دہشت گرد جہن و واصل، ایک خارجی نے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ 2 خودکش حملہ آور ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش میں مارے گئے۔ دھماکے سے 3 ایف سی اہلکار شہید بھی ہوئے۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کو کلیئر کر دیا گیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں شہید 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور صدر پر دہشت گردوں کا حملہ بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیا گیا۔ حملے میں 3 ایف سی اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے، جبکہ 9 شہری بھی دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کے 11 زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ جبکہ 1 زخمی کو خیبر ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید کے مطابق صبح 8:10 پر 3 خودکش حملہ آوروں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر میں گھسنے کی کوشش کی۔ ایک نے خود کو گیٹ پر اڑایا جبکہ 2 حملہ آور دھماکوں کے بعد اندر داخل ہو گئے۔ حملہ آوروں کے گیٹ میں داخلے کے بعد ایف سی اہلکاروں نے فوری رسپانس دیا۔ 50 سیکنڈ میں بختر بند مین گیٹ پر پہنچی اور وہیں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوری اور بروقت کارروائی سے بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ حملہ کیا گیا جس میں 3 جو ہمارے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوان ہیں وہ فوری شہید ہو گئے۔ 2 خودکش حملہ آور نے اٹیک کے لیے اندر جا کے انٹری کی۔ انٹری کرتے ہی ہمارے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں نے فوری طور پر رسپانس کیے، انہوں نے ان کو فوری طور پر نیوٹرلائز کیے۔ دھماکے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ دہشت گردوں کے مقابلے میں پولیس کو جدید سہولیات دے رہے ہیں۔ ہم آلریڈی صوبائی حکومت ان کے لیے جو ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں وہ آرڈر کر چکی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ بلٹ پروف گاڑی آ چکی ہیں اور ہم اپنی پولیس کی مزید کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملے کے وقت ایف سی ہیڈ کوارٹر میں پریڈ جاری تھی۔ پریڈ کے وقت 450 ایف سی جوان موجود تھے۔ خودکش جیکٹ سے لیس 3 خودکش حملہ آور پیدل آئے جن کا مقصد ایف سی افسران اور تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچانا تھا۔ حملے میں شہید ہونے والے 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، کور کمانڈر پشاور، آئی جی پولیس ذوالفقار حمید سمیت چیف سیکرٹری سمیت اعلیٰ عسکری اور سول قیادت نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں گے۔ سعودی مسلح فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جنرل فیاض بن حمید الرویلی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک میں فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دفاع، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ جی ایچ کیو آمد پر پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ سعودی عسکری وفد نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے ہدایت دیتے ہوئے کہا ملکی برآمدات پر نافذ کردہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا پچھلے 5 سال کا عالمی معیار کے مطابق 3rd پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ رقم کے بہترین استعمال کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے موسوم چیئرمین کو منتخب کیا جائے۔ رقم کو صرف ملکی برآمدات میں اضافے، متعلقہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے۔ برآمدی سیکٹر کی افرادی قوت کی ہنرمندی، ٹریننگ اور عالمی معیار کی جدید سہولتوں کے لیے رقم استعمال کی جائے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت جاری پروگرام اور تمام سکیمز کی بھی 3rd پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ٹی ڈی اے پی کے کردار کا اصلاحاتی جائزہ اور تشکیل نو کی جائے۔ یہ سب کچھ کہا گیا ان کی جانب سے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے تمام جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ افغانستان، فتنہ الہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار ہو چکے ہیں۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے حارث صاحب۔ اب تو یہ نئے فیچر نے بتا دیا، پہلے بھی اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے کہ بیرون ملک سے آپریٹ کیے جاتے ہیں، غیر ملکی ایجنڈا یہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اب دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، غالباً رابطہ ہمارا جو ہے وہ ہم ڈسکنیکٹ ہوا ہے۔ اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے
बेनकाब हो गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट के बाद अब ये मामला वाज़ेह हो गया है कि तमाम जाली अलंबरदारों का जो पर्दा था वो मुकम्मल तौर पर चाक हो गया है कि अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन है। ये अब मालूम हो चुका है, इस पर मोहर सब्त हो गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार हो चुके हैं। ऐसा ही है, अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा फितनाउल ख़ारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की अकाउंट्स निकले, जिनके ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां भी दुनिया पर आया हो गई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए मज़मूम मकासद के लिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल पूरी तरह खुल चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनाउल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कमर चीमा तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपके वक्त का शुक्रिया कमर साहब। पहले भी पाकिस्तान इस पे बात करता रहा है, लेकिन अब तो साबित हो गया ना, मोहर सब्त हो गई नया फीचर सामने आने के बाद। क्या कहेंगे आप इस पे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्स की तरफ से जो ट्रांसपेरेंसी आई है कि हमें एटलीस्ट पता चलता है कि ये अकाउंट कहाँ से है, और हर वो अकाउंट जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, इंडिया से है। और फिर आप देखें कि अफगान तालिबान जो है उनको भी नहीं पता कि जो प्रोपेगेंडा इंडियन गवर्नमेंट अफगान तालिबान के बिहाफ पे पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। तो इंडिया बेसिकली अभी नरेंद्र मोदी साहब G20 में गए हुए थे और वहाँ पे बड़ी ह्यूमनिज्म और इंसानियत के लेक्चर दे रहे थे, लेकिन घर में जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करने में आप देखें कि, और देखें ये प्रोपेगेंडा नहीं होता, इससे दूसरे मुल्कों में एक सोशल इकोनॉमिक अनरेस्ट फैलाना मकसद होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलाना मकसद होता है, ताकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब कर सके। और उसमें फिर ये होता है कि ट्रेंड चलाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो समझ नहीं आई कि ये इनकी तो बेस वहाँ पे है। तो आप इमेजिन करें कि असल ना तो ये कन्वेंशनल जंग लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ, ना डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके। तो उन्होंने सोचा कि द बेस्ट वे यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अनरेस्ट फैलाओ, हुकूमत के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करो, और फिर हमारे कुछ नादान दोस्त जो हैं उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन जाते हैं, बिकॉज वो समझते नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन इन प्रोपेगेंडा अकाउंट से आ रही है उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। देखिए थैंक यू, मैं तो समझता हूँ एलॉन मस्क एंड एक्स के वो ट्रांसपेरेंसी में इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अफगानिस्तान, फितनाउल हिंदुस्तान और भारत जो है मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम चला रहा है। हमें दौरान गुफ्तगू ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दिफाई तज्जियाकार हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर सवाल ये है कि ये जो एविडेंस हैं इस नए फीचर के बाद जो पाकिस्तान के पास आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत, फितनाउल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोपेगेंडा में, पाकिस्तान के लिए कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे ये आलमी सतह पर? आपका क्या नुक्ता नज़र है इस पर? इसका तो कोई डाउट नहीं, जब से ये एलन मस्क ने ये डिटेल अपडेट्स लाने शुरू किए हैं इनका सारा भांडा फूट गया। अगर आपको याद हो पहले EU डिसइंफो लैब में भी इनके वेबसाइट और इनके फॉरेन जितने पुराने थे इंडियन जो चला रहे थे वो भी पकड़े गए थे, और अभी भी कोई नॉर्थ अमेरिका में है, कोई इंडिया से चला रहे हैं, कोई और इसका खास PTN, उसके बाद ये अफगान तालिबान रजीम, और ये इनका गट क्यों नजर आ गया। इनको मेरे ख्याल में ये और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इनकी फौज अनट्रेन अनप्रोफेशनल, जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको शिकस्त फाज दी है, इनका मुंह काला किया है, इतने बड़ी फौज को घुटने टेकने मजबूर किया है इनका। उसके बाद एयरफोर्स का हाल आपने देख लिया है कि ये अब दुनिया में ऐसे लोग हो गए हैं, पाकिस्तान रीजन स्टेबलाइजर बन गई, ये इनको हजम नहीं हो रहा। इसलिए अब ये फौज के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये इस तरह के प्रोपेगेंडा पर आ गए हैं, और ये प्रोपेगेंडा बेसिकली फिफ्थ जनरेशन वार में बड़े ये होता है, ये इन्होंने ये शुरू किया हुआ है, ये इंतजार फैलाना चाहते हैं, अपना नैरेटिव लाना चाहते हैं, अवाम में अनरेस्ट लाना चाहते हैं, हुकूमत के खिलाफ ये नफरत फैलाना चाहते हैं, ये बुरी तरह नाकाम भी हो रहे हैं। लेकिन आज पता नहीं चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, हमारे पास इतने अच्छे क्वालिफाइड यंग गर्ल्स एंड बॉयज हैं
जो IT क्वालिफाइड हैं, इसका काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें। आप अपने नैरेटिव स्ट्रॉन्ग बनाएं, इनके नैरेटिव का एक वो काउंटर जवाब भी दें और अपना काउंटर नैरेटिव ना दें। हमें जो है वो काउंटर नैरेटिव देने की जरूरत है और उसके लिए इन्हीं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये आपकी राय है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा, आपने भी तज्जिया किया सूरत हाल पर, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को तारीखी कामयाबी मिली। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। परफॉर्मेंस से बढ़कर कोई बयानिया नहीं हो सकता। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन शिकस्त हुई। आज फैज हमीद है, ना जिताने वाले जजेस हैं। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी। हमारे अपने लोग ये बात कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, अब नैरेटिव की सियासत है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं। कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। 2018 में जब मैं जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इलेक्शन जीतने के लिए तब भी इनको RTS बंद करना पड़ा था। हमने तो बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन में, हालांकि हमें नजर आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 14 साल से क्या हो रहा है कि बस नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। 1.5 लाख का अमला सुथरा पंजाब का घर घर और पंजाब का चप्पा चप्पा कोना कोना साफ कर रहा है। सड़कें 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पिछले साल और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 10,000 किलोमीटर इस साल बनेगी। अस्पतालों में फ्री दवाई मिल रही है, 100 अरब रुपए की फ्री दवाई मिल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। सियासत में सबसे बड़ी गलती बाइकॉट की होती है और धांधली का इल्ज़ाम तब लगाते जब ये मैदान में होते, किसी अमल में शरीक ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, डिजिटल मीडिया के जरिए दुश्मन को दुश्मन की जुबान में जवाब देना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। डिजिटल मीडिया का फेक न्यूज़ की रोकथाम में अहम किरदार होना चाहिए। मार्का हक में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को फिर तलब कर लिया। भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जबकि कमीशन ने उनसे तहरीरी जवाब भी मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर समाअत। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी फिर तलब। बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। समाअत के दौरान कमीशन हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तलाल चौधरी वाज़े तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर ममलिकत किसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के मजाज नहीं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि वज़ीर ममलिकत ने खिलाफ की और पेश होना भी गवारा नहीं किया। केस में तलाल चौधरी के वकील पेश हुए और बताया कि मुवक्किल कमीशन के सामने पेश होंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़े किया कि बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं किया जा रहा, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का फैसला किया है। वज़ीर ममलिकत व मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बने बल्कि एक म्यूजिकल कंसर्ट में गए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफी भी तलब की। इलेक्शन कमीशन ने हुज़ैफा रहमान को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की अदम पैरवी पर खारिज की गई दरख्वास्त बहाल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने करार दिया कि वकील बाहर जाकर गलत बयानी करते हैं। जितना रिलीफ तहरीक इंसाफ को इस अदालत से मिला, किसी अदालत से नहीं मिला। हम चेहरा देखकर नहीं, केस की फाइल देखकर फैसले करते हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने बानी पीटीआई की जानिब से दायर मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को पता नहीं मुझसे क्या जिद है कि नाम काज लिस्ट में नहीं आता। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपको भी पता नहीं अदालत के साथ क्या जिद है जो अदालत बारे प्रेस में गलत खबरें देते हैं। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि मैंने तो कोई गलत खबर नहीं दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि ये जो आपके साथ वकील साहब खड़े हैं इनसे पूछें गुज़श्ता समाअत पर केस कॉल किया गया मगर कोई वकील मौजूद नहीं था। बाहर जाकर कहते हैं कि हमें पता नहीं केस कब लगा। सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि वकील साहब आपसे माजरत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम चेहरा देखकर केस नहीं सुनते। जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला शायद ही किसी अदालत से मिला हो। अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। मेरी अदालत में इतने वकील ना आया करें, एक ही वकील काफी होता है। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अदम पैरवी पर खारिज की गई बानी पीटीआई की दरखास्त बहाल कर दी। अदालत ने 25 नवंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने हेल्थ कार्ड के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए फिलफौर इक़दाम की हिदायत कर दी। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की शेड्यूलिंग के प्रोसेस को तेज़ करने की भी हिदायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए मरबूत हिकमत अमली के साथ इक़दाम उठाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का अवामी मुफाद के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का भी अयादा।